बहुत बहुत स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਤੋਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਕੋਰਸ ਦੇ ਨੈਕਸਟ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਗਨ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਮਿਲੇਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੇਮ ਕਰਕੇ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਟੌਪਿਕ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਐਡਵਾਂਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਐਸਸੀ ਸੀਜੀਐਲ ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਅਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਫਰੇਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਵਾਰੀ 'ਚ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ, ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਏਗੀ ਤਾਂ ਐਟ ਦਾ ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ ਔਨ ਇਟ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਪਰ ਡੇ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਜਸਟ ਫੋਕਸ ਔਨ ਇਟ, ਇਸ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਕੋੜੇ ਨਹੀਂ ਭਜਾਉਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਡੇਟ ਵਾਈਜ਼ ਕਲਾਸਿਸ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅਨਲੌਕ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਾਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਕਲਾਸਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ। ਸਰਕਲ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਔਰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਕੁਝ ਬਿਹਤਰੀਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ। ਆਮ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਆਕ੍ਰਿਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂਸੂਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਜਾਂ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਕਵਾਂਗੇ, ਯਾਨੀ ਪਰਿਧੀ ਕਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਇਹ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਹੈ ਔਰ 10 ਲੰਬੀ ਰੱਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਐਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਐਜ ਅ ਸਰਕਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਰਕਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ ਜੋ ਲੈਂਥ ਹੋਗੀ ਨਾ, ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਗੀ, 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲੈਂਥ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰਕਮਫੈਰੈਂਸ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ, ਸਰਕਮਫੈਰੈਂਸ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਰਿਧੀ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਅਗਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਿਧੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਸ ਸਰਕਲ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਲੈਂਥ ਹੋਏਗੀ ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ। ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਮੁਖੀਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ, ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸਰਕਮਫਰੈਂਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਖਾ ਖੰਡ ਹੈ, ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਰੇਡੀਅਸ। ਕੀ ਇਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਰੇਡੀਅਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਤ੍ਰਿਜਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਅਸ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਇਹ ਉਹ ਰੇਡੀਅਸ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅਗਰ ਨੈਕਸਟ ਪੁੱਛ ਲਾਂ ਕਿ ਦੱਸੋ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ OB ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤਾਂ 6 ਹੋਗੀ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੋਗੀ। ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਜਿੰਨੀ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਨੀ ਹੀ ਅਦਰ ਰੇਡੀਅਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਲਿਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਜ਼ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜੋ AOB ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਲਾਈਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ OC, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰ ਜੀ AO ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰੰਤੂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ OC ਮਿਲਾਤਾ, ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ AC ਜਾਂ CA ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੋ S ਨੂੰ AC, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਡਾਇਮੀਟਰ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਡਾਇਮੀਟਰ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਮੀਨਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਆਸ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 2 × ਰੇਡੀਅਸ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਜੋ ਰੇਡੀਅਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਡਾਇਮੀਟਰ ਅਪੋਨ 2 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੱਥ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਾਣੇ ਨਾ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ।
ठीक है। इस तो इलावा क्योंकि मैं थोनों हजे तक सरकम खास तौर पर एक दो चीज़ां थोनों मैं शेयर कीतियां सी, ज़्यादा डिटेल में चीज़ां नहीं शेयर कीतियां सी। सरकम सर्कल, ठीक है। इस तो इलावा ट्राइंगल के बहुत सारे क्वेश्चनस ने, बहुत सारे डेप्थ लैवल के क्वेश्चनस ने हजे मैं पेंडिंग छड्डे हुए, इस करके क्योंकि जब तक आप सर्कल नहीं ना समझ लेंगे पूर्ण तौर पर, तब तक वो शायद तक क्वेश्चनस अपने पूर्ण तौर पर कंप्लीट नहीं होंगे, ठीक है। चलिए सिलसिले में आप अगे बढ़ाने थोड़ा जा। दूजी गल करते हैं पैरामीटर। पैरामीटर इज इक्वल मैं थोड़ा दसिया सी सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल तुसीं जानते हो, ठीक है, यानी वृत्त की जिन्नी लंबाई होएगी, जिन्नी उहदी लेंथ होएगी, दैट इज ए आपां नूं की कवांगे, उहनूं आपां कवांगे सर्कल दा सरकमफ्रेंस। हुण सरकमफ्रेंस दा बराबर और एरिया दा बराबर रूल किस तरह डिजाइन होए उन्हां ते आपां डिस्कस करते हैं। चलिए एग्जाम के लिए दो तीन चीज़ां होर भी ख्याल रखनियां है, उन्हां ते आपां डिस्कस कर लेने पहला कि कई बार सानू पेपर दे विच इस सर्कल का अद्धा पार्ट भी पूछा जाता है, और उस अद्धे पार्ट नूं आपां किस नाम तो जानते, उस अद्धे पार्ट नूं जानते आपां नाम तो मैं कह सकदा वां कि अद्धा पार्ट जिहड़ा हुंदा है सेमी सर्कल, यानी अद्धा वृत्त हुंदा है, ठीक है। चलिए जे हुण आपां इत्थे समझांगे कि इहनूं मैं अगर ऑबलिक कर दवां, इत्थे सरकमफ्रेंस कर दां तो कोई दिक्कत नहीं है ना। सरकमफ्रेंस रूल हुंदा है 2πr। इहनूं आपां डिस्कस करदे हां डिटेल नाल किस तरीके नाल होएगा। आप इत्थे लिखांगे नंबर फस्ट। सर्कल दे विच तुसीं सब तो पहली चीज़ याद रखनी है एरिया। की याद रखना है? एरिया, ठीक है। एरिया पूछा जा सकता है, तो एरिया हुंदा है πr², और दूसरा अपने कोले की होएगा इहदा सरकमफ्रेंस, जिन्हों परिधि कहांगे आपां, और ये हुंदा तुहाडे कोले 2πr, ठीक है। ये नंबर 2 हो गया। नंबर 3 दे विच तुहानूं पूछा जा सकता है कि अगर इसे दा अद्धा पार्ट है, बई सेमी सर्कल है साडे कोले, सेमी सर्कल कहंदे अद्धे पार्ट नूं, और इहदा आपां एरिया फाइंड करना है, तो देखो पूरे दा की हुंदा πr², तो अद्धा इट मीनस आप अद्धा कर दो, मतलब डिवाइड बाई 2 कर दो। बई अपने कोले 20 है, 20 नूं आप अद्धा करना है तो आप 2 नाल भाग करांगे, दो हिस्सिਆਂ 'ਚ वंड दांगे ना, उस हिसाब नाल आप वंड कर देनी है दी। और इदां ही साडे कोल की आ जाना है, लाइक मैं कह सकदा है कि अगर इहदी सरकमफ्रेंस आप फाइंड करांगे तो साडे कोले सेमी सर्कल दी सरकमफ्रेंस की होएगी, जिवें 2πr है, इहनूं बटा 2 कर दांगे तो साडे कोले की बचेगा, πr बचेगा। ये चीज़ का ख्याल रख लेना है। कंसैप्ट समझ आ पा रहा ना सारिਆਂ ਨੂੰ? चलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ां ने जो एग्जाम 'ਚ तुहानूं पूछा जा सकता है। चलिए बई हुण मैं तुहानूं एक दो चीज़ां होर भी साझियां कर देना। कई बार सवाल इदां भी सानूं पूछा जा सकता है कि देखो सर्कल दा एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए सर्कल की गल करते हैं तो सानूं इत्थे ये भी पूछा जा सकता है कि 2πr इंटू 2πr बराबर यानी 4 इंटू पाई के बराबर भी हुंदा है। ये भी याद रख लेना है। कई बार सानू यह सवाल च उलझा के पूछ सकता है पेपर वाला, जिस करके कि सवाल अगर आ जाए तो आप इस तरीके नाल भी इन्हों कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, सर्कल दे विच कुछ चीज़ां अनसुनियां अनकथियां बहुत सारियां होंदियां जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता हुंदा। जिवें कि गल करते हैं कि मेरे को इहदा ये मुख बिंदु है, ठीक है, इहदा नाम रखता ओ। अगर मैं इसनूं इत्थों मिला देवां तो मेरे को ओ ए हो गया, अगर इसनूं मैं इधर मिला देवां तो मेरे को ओ बी हो गया। अगर इत्थे दोस्तों अपने को की है थीटा दिता गया, की दिता गया, थीटा दिता गया, तो इत्थे अगर आपां सपोज ए बी है, वॉट इज दिस इज इट्स आर्क, इनू की कहांगे आर्क, यानी आपां इनू कहने चाप, की कहने चाप, ये थीटा हो गया। ये जिहड़ी तुहाडे कोले रेडियस है, ये रेडियस दोनों की होणगियां सेम होणगियां। हुण आपां की कह सकते हैं, वट वी कैन से दैट दिस इज ए, मैं कह सकता है कि लेंथ ऑफ एन आर्क। पेपर दे विच अगर पूछा जाए तो लेंथ ऑफ एन आर्क तक की होएगा। देखो जदों भी लेंथ की गल आएगी तो तुहानूं पता है भी 2πr ने आना ही आना है। मैं तुहानूं हुण ही डिस्कस कीता सीगा ना बई इहदे नाल टोटल थीटा दे रखे बई थीटा टोटल किन्ने जो होएगा 360। कोई भी जिवें घड़ी है, कोई भी गोल आकृति है, हमेशा 360 डिग्री के इक्वल होएगा। ये चीज़ याद रखना, जिवें 360 डिग्री चों कंसीडर किया जाएगा। हुण आपां इसनूं ये भी कह सकते हैं भी जे मैं 2 नाल कटदा तो मेरे को कितना आ जाएगा 180, तो इहदा फार्मूला ये भी बन सकता है कि πr थीटा बटा 180 डिग्री। ये भी तुसीं ख्याल रखना होएगा। क्लीयर है जी? कंसैप्ट समझ आ गया सारिਆਂ ਨੂੰ? ये की है लेंथ ऑफ एन आर्क। मेरे नाल सारे बोलो वापस तो, लेंथ ऑफ एन आर्क यानी चाप की लंबाई। हुण आपां इत्थों सिलसिला थोड़ा जिहा होर चेंज करते हैं। कई बार पेपर दे विच इदां भी पूछा जाता है सानू कि सपोज जिवें ये सर्कल है और ये सर्कल का की है साडे कोले सेंटर है, ये सर्कल का की है साडे कोले सेंटर है, और इस सेंटर तो आपां इत्थों तक मिलाता ओ ए, और ए वाला साडे कोले ओ बी है, ओ बी है, और दिस इज ए थीटा, और ये साडे कोले रेडियस है, रेडियस दोनों सेम होणगियां। पेपर वाले नूं इस चीज़ का पूछ लेगा कि दसो एरिया दसो, मतलब की है व्हाट इज दिस इज सैक्टर,
ਏਰੀਆ ਆਫ ਸੈਕਟਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਸੈਗਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰੋ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਲ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਲ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ठीक है। और इत्थे खास तौर पर जो गल करते एंगल की, मैक्सीमम टाइम तक सानू 60 डिग्री का एंगल ही आता है, ठीक है। हुण देखो ये तुसीं याद रखना होएगा कि पाई आर स्केयर, देखो एरिया पूछा जाएगा उत्थे पाई आर स्केयर आई आना है, यानी थीटा बटा कितना आ जाना 360 डिग्री। आ लो जी अपना काम हो गया डन। समझ आ गई गल? कोई परेशानी है किसी बच्चे को? कोई परेशानी नहीं है। बहुत बार सानू पूछा जाएगा कि जिवें सानू देता उन्होंने कि रेडियस तुहाडे कोले 7 सेंटीमीटर है और थीटा बराबर तुहाडे कोले 60 डिग्री है, दसो भी सैक्टर का एरिया कितना है। तो चुपचाप करके आप देखो, इन्हां दी मैं देसी दवाइयां भी देवांगा तुहानू, परंतु सानू बेस भी मजबूत करना है। तुहाडे चो हो सकता है बहुत सारे बच्चे इदां दे होणगे कि जिन्हां दा इह बेस है तक नहीं होएगा। आपां इत्थे की लिखांगे? लिखांगे 22/7 है। रेडियस थोड़े कोले कितना है? रेडियस तुसी कह सकते हो भी 7 × 7 है, इंटू थोड़े कोले 60 बटे कितना आ जाना 360 है। कैंसल करोगे 1/6 है, 7 ਨਾਲ 7 कट्टिया गया, इत्थे बचे 3, इत्थे बचे 11, 11 7 77/3 तुहाडे कोले की आ जाना सैक्टर का एरिया आ जाना। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं है। क्लीयर है ना? क्लीयर। चलिए इस तो बाद अगला कंसैप्ट है, अगला कंसैप्ट आ जाता है अगर साडे कोल इस तरीके का सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर है, व्हाट इज दिस? दिस इज ओ है, ठीक है। बहुत सारे सवाल करने हैं हाजी, क्योंकि ये चीज़ां आप इस तरीके नाल करांगे पेपर दे विच, इदां करके और इदां करके सानू पूछा जाएगा कि दसो ए ओ तथा ओ इदां करके है, और ए वाला थोनों शैडेड पार्ट करके पूछा जाएगा दसो इसदा इस सर्कल का एरिया कितना है, इहदा कितना है। मतलब बहुत सारियां चीज़ां हुंदियां ने। इहदे विच आपां ये भी कह सकते हैं पेपर वाला ऐ भी करके थानू दे देगा कि जिवें इस तरीके नाल देता है और इदां करके देता, ए वाले पार्ट नूं मिला दिए और इत्थे ऐ करके इदां बना दिए, इत्थे ऐ करके इदां बना दिए और ए वाला पार्ट ऐ करके दे देगा, ठीक है। तुसी अज्यूम नहीं कर सकते भी मैं थोनों कितना डेप्थ दे विच लैके जावांगा, लेकिन उस तो पहला मैं आ चीज़ पर्सनली चाहुंदा है कि साडे बच्चे इस चीज़ नूं लैके बिल्कुल कतई परेशान ना होण कि सानू बेसिक तो टफ ते सर किदां लै गए। आपां हौले हौले करांगे, हौले हौले जाऊगा तो सब कुछ चीज़ां तुसी प्रैक्टिकली तीर ते समझोगे। चलो कई बार पेपर दे विच की हुंदा है ना, पेपर दे विच जो साडे कोले बेसिकली ये सानू कंडीशन जो दित्ती हुई है सैक्टर दे विच, सैक्टर दे विच पेपर वाला ना ए बी जिवें साडे कोले है, और बहुत सारी ये देखो आ मैं जिथे ड्रॉ कर रहा है ये वाला हैगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क, कि कई बार पेपर वाला सानू की करेगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क दे देगा। लेंथ ऑफ एन आर्क मान लो सपोज सानू इत्थे 12 सेंटीमीटर देती है, लेंथ ऑफ एन आर्क सानू दे दी गई है और रेडियस भी सानू दे दी गई है 7 सेंटीमीटर है। तो मेरे प्यारे बच्चों इत्थे पेपर वाला पूछ लेगा कि दसो हुण तुसी तुहाडे कोले एरिया ऑफ ए सैक्टर, एरिया ऑफ ए सैक्टर की होएगा, तो तदा सानू 1/2 ते इत्थे ला देना तुसी आर ते इत्थे ला देना एल। ये एल किनू कंसीडर करेगा? एल कंसीडर करेगा इत्थे तुसी नोट कर सकते हो कि लेंथ ऑफ एन आर्क, लेंथ ऑफ एन आर्क नू कंसीडर करेगा। जिवें कि जे गल करिए आपां तो 1/2 है, पाई थोड़े कोले 7 है, तो एल कितना है 12, कट करोगे 6 बराबर कितना आंसर आ जाना 42 सेंटीमीटर स्क्वेयर तुहाडा पूरे सैक्टर का एरिया आ जाएगा। कंसैप्ट समझ आया कि नहीं आया? सारे बच्चे दसो बिल्कुल समझ आया? वंस अगेन प्लीज़ सारे बच्चे दसो समझ आया कि नहीं आया? एक बारी बेसिक चीज़ां सारियां समझ लीए, उस तो बाद आपां फिर अगे कंसैप्ट दे विच हौले हौले चलांगे। मेरे प्यारे बच्चों इस तो बाद आ जाती कंडीशन नैक्सट सर्कल दे विच है कि जिस हिसाब नाल ये अपने कोले सर्कल है और ये सर्कल का वापस तो की अपने कोले सेंटर है, और सेंटर तो लैके इत्थों अपने कोले ए है और इत्थों अपने कोले बी है, ये दो साडे कोले की हो गई रेडियस हो गई। रेडियस होने के बावजूद अगर सानू इस तरीके नाल मैच, माफ़ करना जरा लाइन टेढ़ी होगी, ठीक है, अगर अपन इस तरीके नाल इदां डिजाइन करके दिता जाता है सो दैट पेपर वाला सिर्फ इस चीज़ का एरिया पूछेगा व्हाट इज दिस इज ए सैगमेंट, ठीक है। मतलब मैं कह सकता कि जिसनों आप लघु वृत्तखंड बोलते हैं सैगमेंट है, क्योंकि इस तो ऊपर ट्रायंगल बाहर रह गया है। तो इसनों करन दे 2-3 तरीके है। पहला तरीका की है कि इत्थे सानू सर्कल का एरिया करना पेगा, फिर इस सानू ट्रायंगल का एरिया करना पेगा, और फिर बाहर सानू जो स्पेस बचा है उसका एरिया बचेगा। लेकिन रूल ये कहता है कि जो तुहाडे कोले सैगमेंट दिता है, बहुत ही रेयर कंडीशन दे विच पूछा जाएगा कि एरिया ऑफ ए सैगमेंट, एरिया ऑफ ए सैगमेंट एरिया की गल करते हैं तो पाई आर स्क्वायर आना ही होना है, इंटू थीटा सानू दिता ही होएगा ये वाला, ठीक है। थीटा साडे कोले होएगा थीटा बटा 360 डिग्री आना ही आना है। हुण जदों भी तुहानू एक कंडीशन याद करा दिना, मैं कंडीशन तुहानू पहलां भी दसी सी कि अगर सानू इस तरीके नाल कोई भी ट्रायंगल दे रखा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दे विच गल करते हैं, ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल दे विच दिता और ए वाला सानू देता इत्थे इन्हां ने 30 डिग्री देता,
ठीक है 30 डिग्री देख और ए वाला सानू 8 है 6 है तो ਇਹਦਾ ਏਰੀਆ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 1/2 ਕੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਇਨਟੂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਹੀ ਲਾਉਨੇ ਨਾ लेकिन तुसी लिखोगे 1/2 एडजेसेंट साइड AB इंटू थोड़े कोले BC इंटू थोड़े कोले की हो जाएगा साइन थीटा। ये चीज़ थोनों मैं ऑलरेडी समझा चुके हैं, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यार सेम ही चीज़ है, अगर यह सेम ही चीज़ है क्योंकि मैनू पता है कि बोथ द साइड्स आर इक्वल, दोनों साइडां बराबर ने और इत्थे थीटा एंगल बन रहा है, सो दैट वट वी कैन से दैट कि आपां इहदे चों माइनस कर दांगे, किहदा कर दांगे, मैं तुहानूं जस्ट दस्सिया सीगा, आपां करांगे इत्थे ट्रायंगल दा एरिया, ट्रायंगल का एरिया सेम ठोको जो थले कराया मैं, और इनू मैं अगर ऐ करके लिखदा बई आर स्केयर लिखदा, कोई माड़ा तो नहीं। क्यों मैं आर स्केयर लिखिया, क्योंकि मैं इस करके लिखिया है कि इस जो सर्कल है इस सर्कल दे विच बनने वाले ट्रायंगल दियां दो भुजावां बराबर हन, तो मैं इसनू AO ते OB भी लिख सकदा हां। तुसीं इत्थे इहदे मैं नीचे लिख दिना है, तुसीं इत्थे AO और OB भी कह सकते हो, या इत्थे इंटू करके एक दूजे दे विच, काटा नहीं है, इंटू है, मतलब AO गुणा BO, या तुसीं OB कह सकते हो। ये गल मैं बार बार सचेत करांगा, समझ लेना गल नूं। और इंटू साडे कोल की हो जाएगा दिस इज ए साइन थीटा, क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हुण साडे कोल समझ आ गया साइन थीटा कित्थों आया, समझ आया कि नहीं आया सारे बच्चों ने, मैनू दसो चीज़ां है, ठीक है। तो ये तुहाडे कोल बेसिक फार्मूला बनेगा, कितों बाहरों फार्मूला नहीं बनता है, फार्मूला बिल्कुल तुहाडे सामने फार्मूले तो फार्मूला डिजाइन करांगे आपां। हुण सर्कल दे विच आ जांदी है नैक्सट कंडीशन, ठीक है। एक चीज़ मैं तुहानूं दस दिना है कि जिहड़े उपर वाले जिन्ने भी साडे कोले सैक्टर ने, सैक्टर दे विच दो जिहड़ियां रेडियस हुंदियां उन्हां दे विच जो थीटा कोण बनदा आ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਚਾਪ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਤਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਨਲਸ। ਐਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰੋਇਡ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਦਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਲ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਈ ਆ ਲਓ ਮੈਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ। ਚਲਿਏ ਇਹਦਾ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦੀ ਦੂਰੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦਾ ਨਾਮ A ਰੱਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਟੋਟਲ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਦਾ ਕਿ 7 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਮੰਨੋ 7 ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਹੋਗੀ ਰੇਡੀਅਸ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ B ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜਨਰਲੀ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ। चलिए भाई अगे आप देखते हैं जरा इस दे विच कंडीशन की आएगी। कंडीशन ये बन जाएगी कि जो साडे कोले OB आएगा और इत्थों तक तो साडे कोले A तक दी लेंथ आई गई है भी, इत्थों तक सेंटर तक तो अगर मैं गल करा तो A वाला साडे कोले टोटल कितना होएगा 7 होएगा ही होएगा। हुण इत्थों अगर मैं बाहर जो कि छोटे सर्कल की गल करते हैं, जे मेरे कोले छोटे सर्कल की रेडियस OA है जिसनों मैं 8 सेंटीमीटर कहांगा, जो मेरे कोले कितना है 7 सेंटीमीटर है। और जे मैं गल करांगा इत्थों OB है तो इसनूं आपां इंज कह सकते हैं कि वड्डा है, इट मीनस है कि 7 प्लस कुछ भी हो सकता है, नाल दे K हो सकता है, मतलब K मीनस भी 3 भी हो सकता है, 7 ते 3 हो गया 10 हो जाएगा, 5 हो गया। इसनूं दूजे भाषा दे विच इंज कह सकते हैं कि साडे कोले एक सर्कुलर ग्राउंड है, इस ग्राउंड दे बाहर सपोज इस ग्राउंड दे बाहर 8 मीटर लंबा, ठीक है, या 8 सेंटीमीटर कुछ भी आ सकता, वो तो पेपर की भाषा आ, एक बाहरले पासे पूरा ट्रैक बनाया जाता है। तो दसो तुसी इस ट्रैक का एरिया कितना होएगा, ये भी पूछ सकता पेपर वाला। पेपर वाला सानू ये भी पूछ सकता है कि अगर छोटे सर्कल के बाहर एक वड्डा सर्कल बनाया जाता और उस सर्कल की रेडियस, उस सर्कल की रेडियस साडे कोले 10 सेंटीमीटर, तो दसो छोटे सर्कल और वड्डे सर्कल के एरिए दे विच अंतर कितना आएगा। सवाल तीजा पूछ सकता है, दोनों के सरकमफ्रेंस का डिफरेंस पूछ सकता है। बहुत सारे सवाल बनते हैं जिसनों आपां या कहने कि खास तौर पर कोई भी अगर आउट ऑफ स्टेट से है तो इसको आप कहेंगे वल्य, और अगर साडे पंजाब सूबे चों आपां गल करते हैं तो इन्हूं सेंट्रोइड सर्कल टू सर्कल भी आपां कह सकते हैं। देखो यार दो चीज़ां तुसीं बड़े प्यार नाल समझ लो, ठीक है। इन्हां दे विच सानू दो ही चीज़ां पूछियां जाणियां, एक तो पूछियां जाणियां सरकमफ्रेंस और दूजा सानू पूछा जाएगा एरिया। सब तो पहले आपां गल कर लेने कि इन्हां दा एरिया किवें होएगा। बई एरिया होने का मतलब यह है कि पाई आर, देखो स्केयर करांगे पाई आर स्केयर, तो पहले तो वड्डे वाले चों आपां छोटे वालों घटा देंगे तो पाई आपां लिखना है तो इत्थे आर स्केयर 1 हो जाएगा। बस इन्नी जी चीज़ है। हुण तुसीं देखो दोनों च पाई है, इहदा की हो जाएगा मेरे कोले, अगर मैं इसनूं इस तरीके नाल लिख लां तो कोई गलत नहीं होएगा। अगर मैं लिखना चाहां, ठीक है, तो मेरे लिए आसान होएगा ताकि मैं सवाल नूं होर तरीके नाल समझ सकदा। तुसीं नाम इहदा चंडीगढ़ एक दिन पटियाला भी रख दो तां भी बुरा नहीं है। तो पाई, ठीक है, आर स्केयर वड्डी आर स्केयर
माइनस छोटी आर स्केयर आंसर करांगे। हुणे आर स्केयर का कंसैप्ट की हो जाएगा कि अगर मेरे कोले सपोज इत्थे आर स्केयर और ए आर स्केयर है, सपोज इन्हूं आपां ए स्केयर माइनस बी स्केयर लैने तो अपने कोले ए प्लस बी आ जाएगा और एक बारी ए माइनस बी आ जाएगा। तो आपां ये चीज़ इत्थे इंप्लीमेंट करके और कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना, इत्थे इस तरीके नाल आपां देसी दवाइयां नाल इलाज करांगे। हुण आउंदी गल इस तो बाद दे विच अगर इहदा सरकमफ्रेंस पुछया जांदा है, बई सरकमफ्रेंस पुछया जांदा है तो सरकमफ्रेंस साडे कोले की बनेगा। देखो अंदर वाले की गल करते हैं तो बाहर वाले की गल करते हैं तो यह आ जाएगा 2πr तो माइनस अपने अंदर वाले आ जाएगा कि 2πr आ जाएगा। हुण दोनों के विचों 2 कॉमन है और पाई भी कॉमन है तो अपने कोले की बचेगा r माइनस r। बस इन्नी चीज़ तुसीं समझ लैनी है, तुहाडा काम आसान हो जाना। आ लो जनाब, क्लीयर है ना। जिवें कि आपां गल करते हैं कि अगर सपोज मेरे को जो साडे कोल यथावत उपर किस्सा है तो इसनूं आपां एरिया फाइंड करते हैं तो आप एरिया बराबर की लिखांगे, एरिया बराबर लिखांगे आप 22/7 है। एक दी रेडियस कितनी सी साडे कोले वट वी हैव 8 सेंटीमीटर विचाले तो 7 8 15 ला लो, भी ओ बी नूं 15 ला लो, ठीक है 15 ला लो तो आप करांगे 15 का स्केयर है, दूजा साडे कोले 7 का स्केयर हो गया छोटे वाला। इनू 22/7 ला लांगे, 15 ते 7 कितना हो गया 22 और 15 चों 7 कढ़िया तुहाडे कोले 8 बच जाने। आ लो जी गल खत्म हो गई गुरु जी। इस तरीके नाल आपां हल करना है, जरा मज़ा आएगा थोनों कंसैप्ट करते वक्त। मैनू पता है बहुत सारिया चीज़ां किते ना किते कॉम्प्लीकेटिव जरूर होंदियां, परंतु बिल्कुल वरीड नहीं होना इन्हां चीज़ां नूं लैके कि किस तरीके नाल है। हुण बहुत सारे बच्चे की करनगे, इत्थे 15 नूं 15 नाल 225 है, 7 7 49 दोनों नूं माइनस करनगे। तद माइनस मुइनस करन दी लोड़ ही नहीं काके, तुसीं कह सकदे हो 22 8 168 हुंदा है, ठीक है कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 178, ठीक है यानी 8 दूनी 16 8 दूनी 16 16 ते 17, ठीक है जी। तो इस तरीके नाल आपां कंसैप्ट कर सकते हैं। हुण गल करते हैं कि सवाल कित्थे कित्थे मजा ये बल्कि होर ज़्यादा तंग कित्थे कित्थे करते हैं। तंग करन दी गल है तो मैं तुहानूं दस दिना कि तंग करना इन्हां सवालों ने इत्थे भी आउणगे। जिवें कि आपां गल करते हैं इस तरीके दे सवाल हो गया, फिर आपां गल करते हैं कि इस तरीके नाल डिज़ाइन होने तो बाद अपने कोल ए वाला आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके नाल गल करते हैं तो अपने कोल पेपर दे विच इस तरीके दे सवाल भी आउंदे ने। फिर जे आपां गल करते हैं तो साडे कोल दूजे तरीके की गल करिए तो इस तरीके नाल डिज़ाइन होने तो बाद अपने कोल ए वाले सवाल आउणगे। इस तरीके की गल करिए तो पेपर दे विच सानूं होर भी तरीके दे सवाल आउंदे ने, जिवें कि खास तौर पर इदां गल करते हैं तो पेपर दे विच ये भी चीज़ां पुछियां जाणगियां इदां करके, ठीक है। इस तरीके की गल करते हैं तो सानूं पेपर दे विच ये भी पूछा जाएगा कि इत्थों इदां करके साडे कोल एक ट्रायंगल बनता है, लेकिन कंडीशन कित्थों आउंदी सर्कल और सर्कल के सैक्टर तो, ठीक है। हुण इस तो बाद आ जाओ तुहाडे कोले कि इस तरीके नाल तुसीं एक बनाया है और इत्थे तुहाडे कोले इत्थे तुहाडे कोले इत्थे तुहाडे कोले इत्थे तुहाडे कोले आ गया। हुण पहला सर्कल हो गया, दूजा हो गया, तीजा हो गया, चौथा हो गया। हुण इहदे च तुहानूं इहदी पुछेगा डायगोनल दी लेंथ है, ये किवें करोगे तुसीं। हुण इस तो बाद साडे कोल ये भी सवाल आ जांदे ने कि जिवें खास तौर ते ये पेपर दे विच डिज़ाइन कीते गए इस तरीके नाल आ लो जी सर्कल बन गया, मतलब आ पार्ट साडे कोले बन गया सर्कल है, ठीक है। चाहे तुसीं कह सकते हो कि साडे कोले कोई भी विच इदां दा गोलाकार फ्रूट रखा जाता है स्क्वायर दे विच, तो उहदा एरिया दसो, ठीक है। इस तो बाद सारे बहुत सारे सवाल इदां भी बनते हैं कि जिवें ये चीज़ां मैं तुहानूं डिस्कस कर भी चुके हैं, जिवें इस तरीके नाल करके कि मतलब ये वाला पेपर दे विच क्वेश्चन होएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल इन ए सर्कल, ठीक है। ये इनस्क्राइब्ड, हाँ एक जगह पर शायद तक जो कोई एक्सरसाइज करोगे तो मे बी मेरे तो एक मिसटेक हुई है, जरा एक बच्चे ने मैनू रिमाइंड भी करवाया सी, पर तुसीं भी ऑब्जर्व करियो। इनस्क्राइब्ड हुंदा आ, इनस्क्राइब्ड का मतलब हुंदा सरकम सर्कल, ठीक है। इन सर्कल और इनस्क्राइब्ड दे विच फर्क है। इन सर्कल हुंदा सर्कल भी किसी फिगर के अंदर होना और इनस्क्राइब्ड होना किसी के बाहर होना। एक छोटियां छोटियां गल्लां है, 2-3 जरा नोट करो हो, ठीक है। इत्थे नोट करने वाली गल्लां है मैंसुरेशन दे विच बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा रोल है इन्हां दा। सब तो पहला गल करते हैं, अगर मैं गल पेपर दे विच कहा जाता है कि पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू द पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। भी अगर सानू क्या जाता है कि 2 लेंथ प्लस ब्रेथ बराबर 4 इंटू साइड, तो इन्हां दे विचों की होएगा, तो तुसीं रखना है पैरामीटर ऑफ स्क्वायर will be always greater than पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये थोनों किसी भी बुक च नहीं चीज़ां मिलणगियां, ठीक है, बहुत बार, क्योंकि आप डायरैक्टली आंसर कर सकते हैं इन्हां दे। इस तो बाद पॉइंट नंबर आ जाओ 2 ते। पॉइंट नंबर 2 ते गल करते हैं कि अगर मैं इत्थे लिखां कि रैक्टेंगल, शॉर्ट च मैं लिखदा डैश, मैं इत्थे लिख दिना कि सर्कल, शॉर्ट दे विच मैं लिख दिना कि इत्थे क्वाड्री,
ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਂ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। अगर मैं इत्थे लिखा डैश करके, चाहे मैं इसनूं पैरामीटर कंसीडर करा, चाहे इसनूं मैं सरकमफ्रेंस कंसीडर करा, भी सिंपल जी गल है। बई रैक्टेंगल की गल है तो रैक्टेंगल का की है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ है, यदा आएगा 2 पाई आर है। और क्वाड्रिलेटरल की गल करते हैं तो तुहानूं पता है कि चारे साइडों का की आ जाएगा कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और प्लस डी ए। इस तरीके नाल ट्रायंगल नूं तुसीं 3 इंटू साइड भी कह सकते हो और तुसीं ए बी, ठीक है, उस तो बादां दे विच तुसीं कह सकते हो कि प्लस थोड़े कोले बी सी प्लस सी ए, ठीक है। इस तरीके नाल भी तुसीं कह सकते हो। अगर इदां भी साडे कोले कंसीडर हुंदा आ, इदां भी साडे कोले कंसीडर हुंदा है तो तद सानू ये याद रखना है कि किहदा एरिया, व्हाट आई एम सेइंग दैट कि अगर इन्हां सारियां दी परिमितियां समान है, परिमाप इन्हां दा बराबर है, तो तुसीं याद रखना है कि ऑलवेज नॉट area of circle will be greater part except all, मतलब बाकी सारियां तो बड़ा होएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर आ जाता है साडे कोले नेक्स्ट पॉइंट नंबर थर्ड पॉइंट इज दैट कि अगर सानू पूछा जाता है कि पैरामीटर ऑफ हाँ जी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, circumference of a circle equal to the parameter of a square। मतलब कि अगर सानू क्या जावे 2 पाई आर दे बराबर 4 इंटू साइड है तो तुसी दसो कि सर्कल दी रेडियस और सरकमफ्रेंस दी साइड दे विच ऑलवेज रेशियो कितना होगा, ठीक है। तो नोट रखना है इसनू हमेशा लई, रेशियो बिटवीन रेडियस ऑफ सर्कल एंड साइड ऑफ स्क्वायर। मैनू जरूरत पेगी अगे मैंशुरेशन च, इस करके मैं थोनू सतर्क कर रहा, सचेत रहना है, ठीक है। इहदा हमेशा जो रेशियो होएगा वो 7/11 होएगा। कितना होएगा? 7/11 होएगा। ये चीज़ां मैं थोनू बहुत बार दस भी चुकिया मैंशुरेशन दे विच, ट्रिक दी डोज दे विच, कि मैंशुरेशन दे बहुत सारे क्वेश्चनस होणगे जो 3D च मैं लेके आवांगा, जिन्हां नू बिना किसी फार्मूले तो असी बिना पेन यूज किए भी करके दिखावांगा और थोनू प्रैक्टिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिखावांगा विद डेट भी आ चक्को जी आ कीता पिया, ठीक है। इस तो बाद आ जाता है पॉइंट नंबर आपां लिखना आ चौथे पॉइंट दे विच आ जाता है कि जे आपां गल करते हैं कि इत्थे मैं लिखा कि सरकमफ्रेंस ऑफ, मैं डायरेक्टली लिखदा कोई दिक्कत नहीं है, चलो डायरेक्ट लिख देने कि 2 पाई आर, अगर साडे कोले 2 पाई आर और अगर साडे कोले 4 इंटू साइड बराबर है तो सानू पूछा जाएगा कि रेशियो बिटवीन इट्स एरिया, मतलब कि तुसी दसो कि पाई आर स्केयर रेशियो थोड़े कोले अगर साइड का स्केयर है तो की रेशियो होएगा। हमेशा याद रखना ये 14/11 होएगा, इहदा याद रखना। ये शॉर्टकट टर्म्स दस रहा मैं थोनू, शॉर्टकट टर्म्स मैनू बहुत ज़्यादा जरूरत पएगी। ये 4 महत्वपूर्ण चीज़ां थोनू किसी बुक के पन्नियां च नहीं दिते हैं। मेरे शुभचिंतकों, मैं थोनू यही कहांगा कि अज दे सैशन च सिर्फ मैं इन्ना ही करावांगा, बल्कि कल तो आपां क्वेश्चनिंग शुरू करांगे ताकि सानू डिटेल वाइज पता लगेगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो, सतर्क रहो और प्रैक्टिस डेली रूटीन ते करना है, ठीक है। किहड़े होणगे, ठीक है। और थोड़ा डाटा है वो अटैच किया गया है, चैप्टर नंबर पहला तो चैप्टर नंबर दूजा भी हो सकता है। इसकी जानकारी तुहानू बहुत जल्दी दे दी जाएगी। तब तक अपना ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय।